فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولی قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سمع ذاتو ابراج ولا عجب ذاتو ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا برج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذات ماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ الہ الخلق ورازقہ والصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المطیع الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہور الطاہر الدر الفاخر الغنی الظاہر البہر الذاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسقر علی الشجاع المتین الامام المبین علی الشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام العلمۃ النقباء مجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء رحمۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وسخاوتہم وامامتہم وتشہیم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، صلوات پڑھنا۔ معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج یہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ چند باتیں انشاءاللہ آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا کہ سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے، اور حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے، اور یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہے کہ حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ہم مجلسوں میں فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں تو آپ تعریف اہل بیت کی نہیں کرتے ہیں، آپ بھی تعریف اللہ ہی کے کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ بھی تعریف اللہ ہی کے کرتے ہیں، تو تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے آج، اور میں بغیر کسی کے انتظار کے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ جو آ گیا یہ اس کا مقدر ہے، جو نہیں آیا وہ اس کا مقدر ہے۔ بہرحال مجھے جو پہنچانا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا، آپ لوگ آمادہ رہیں انشاءاللہ۔ چند باتیں جلدی عرض کرنا ہے۔ تو سلام ہے اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے، اور حمد ہے، تعریف ہے اللہ کے لیے، اور اللہ نے جن کو چنا انہیں صاحب اختیار بنایا، صاحب معجزہ بنایا۔
تاکہ پتہ بھی چلے کہ اللہ کے چنے ہوئے کون ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے چنا ہے انہیں۔ سارے نبیوں کو معجزے دیے، جیسے موسیٰ کے معجزے کا نام ہے عصا، نوح کے معجزے کا نام ہے کشتی، ابراہیم کے معجزے کا نام ہے آگ کا گلزار کر دینا، ویسے ہی نبی کے معجزے کا نام ہے قرآن۔ آخری نبی کے معجزے کا نام ہے قرآن۔ اور موسیٰ کا جیسے عصا معجزہ ہے، تو عصے نے معجزے دکھائے، مگر اس وقت معجزے دکھائے کہ جب صاحب معجزہ ساتھ تھا۔ موسیٰ جب چلے گئے تو عصے نے معجزے نہیں دکھائے۔ موسیٰ کے بعد عصے سے کوئی معجزے کا اظہار نہیں ہوا۔ کشتی نوح معجزہ ہے، مگر کشتی نوح سے معجزے کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب نوح موجود تھے۔ نوح چلے گئے تو پھر کشتی نے معجزہ نہیں دکھایا۔ اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ معجزہ اسی وقت معجزہ دکھائے گا جب صاحب معجزہ موجود ہو۔ اگر صاحب معجزہ نہیں ہے تو صاحب اعجاز نہیں ہے تو معجزے سے معجزے کا اظہار نہیں ہوگا۔ تو اب آخری نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی میں ہمت ہے جو کہہ دے کہ قرآن آج معجزے نہیں دکھاتا ہے؟ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ کہا نہیں، قرآن سے آج بھی معجزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بھائی معجزے کا قانون تو یہ ہے کہ جب تک صاحب معجزہ رہے گا تو معجزے کا اظہار ہوگا۔ صاحب معجزہ کے جاتے ہی معجزوں کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ مگر آج قرآن کا معجزہ دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی پردے میں محمد موجود ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس سے آہستہ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ہاں تو غور کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی صاحب معجزہ موجود ہے۔ تو اب قرآن ہے نبی کا معجزہ، قرآن ہے آخری محمد کا معجزہ، آخری نبی کا معجزہ، محمد مصطفیٰ کا معجزہ۔ تو قرآن ہے نبی کا معجزہ، اور اسی نبی نے فرمایا اے علی آپ ہیں زمین پا اللہ کا معجزہ۔ نبی کی حدیث ہے کہ آپ ہیں اللہ کا معجزہ، قرآن ہے نبی کا معجزہ۔ اور ایک صلوات پڑھے محمد قرآن نبی کا معجزہ، علی خدا کا معجزہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود نبی کہہ رہے ہیں، غور کیجئے گا، خود نبی کہہ رہے ہیں قرآن ہے نبی کا معجزہ، علی ہے اللہ کا معجزہ۔ اب قرآن خود معجزے دکھاتا ہے، قرآن میں طاقت ہے بیماروں کو شفا دینے کی، قرآن میں طاقت ہے مردوں کو جلانے کی، اور کر رہے ہیں آپ، قرآن میں طاقت ہے درختوں کو بلانے کی۔ تو بھائی قرآن اگر نبی کا معجزہ ہو کے معجزے دکھائے تو کوئی حیرت نہیں کرتا، تو اگر علی اللہ کا معجزہ ہو کے معجزے دکھائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اچھا دیکھیے، اللہ شریعت ہے اللہ کی، اب بات آغاز کر رہا ہوں، شریعت ہے اللہ کی، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے لیے، مگر نماز اللہ کی ہے، بتانے اللہ نہیں آیا، روزہ اللہ کا ہے، سکھانے خدا نہیں آیا، غور کر رہے ہیں آپ، حج اللہ کا ہے لیکن بتانے اللہ نہیں آیا۔ بھائی یہ عبادت ہے اللہ کی مگر بتانے اللہ نہیں آیا، بتائی کس نے؟ اہل بیت نے۔ تو جیسے شریعت ہے اللہ کی، بتائی اہل بیت نے، ویسے ہی قدرت ہے اللہ کی، دکھائی اہل بیت نے۔ غور کر رہے ہیں آپ، ایک صلوات تو پڑھے محمد علیہ محمد۔
देखिए अगर आप थोड़ा आमादा हो जाए तो मुझे जो पढ़ना है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। गौर कीजिएगा। तो कुदरत, अब जो दुनिया कह देती है मुर्दा कैसे जिलाया, सूरज कैसे पलटाया, दरख्तों को कैसे बुला लिया, कंकरियों को कैसे कलमा पढ़ा लिया, गौर कीजिएगा। तो कभी भी अहले बैत को अपने से मिला के ना सोचिएगा। हाँ, अक्सर दुनिया यही कह देती है ना कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कैसे कर लिया। तो आपको किसने ये ठेका दिया था कि आप अहले बैत को अपने से मिलाइए? और कर रहे हैं आप? भाई अहले बैत अल्लाह के नूर के बने हुए हैं, अल्लाह के नूर के बने हुए। अब बच्चों के लिए अर्ज कर दूं मिसाल दे के, अल्लाह के नूर के बने हुए ना, ये तो सब मानते हैं ना, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात का, क्योंकि ये मुसल्लम है। ये अगर कोई इस बात का भी इनकार करे तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे दिन में सूरज का इनकार कर दे। हाँ, ये ऐसी मुसल्लम बात है कि अहले बैत अल्लाह के नूर के बने हुए हैं, नूर से बनाया। अब एक सेब लीजिए, 20 टुकड़े कीजिए, 20 लोगों में बांट दीजिए और उनसे पूछिए हर एक से कि मजा कैसा है, जायका कैसा है। तो अगर बताएंगे तो सारे लोग एक जैसा बताएंगे। अगर मीठा कहेंगे तो सब मीठा, कड़वा कहेंगे तो सब कड़वा, खट्टा कहेंगे तो सब खट्टा। भाई और कर रहे हैं आप? क्यों का इसलिए कि एक सेब के टुकड़े हैं तो जायका भी एक जैसा होगा। कर रहे हैं आप? एक सेब के टुकड़े तो जायका भी एक जैसा। तो जब उसके नूर से बने हैं तो असर भी उसी के नूर वाला। अगर भाई आप इनकार करेंगे अहले बैत के मोजज़ात का, तो ये अहले बैत के मोजज़ात का इनकार नहीं है, उसकी कुदरत का इनकार है। और कर रहे हैं आप? उसकी कुदरत का इनकार है। अब आप देखिए कि अगर अहले बैत का इनकार किया तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। ज़ियारत ईद गदीर, ज़ियारत ईद गदीर, रोज़े ईद गदीर इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे। ज़ियारत ईद गदीर, उसमें नबी का फिक्रा मौजूद है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ बहुत आहिस्ता से। इरशाद हुआ, नबी कह रहे हैं कि आए अली, जिसने आपकी विलायत को नहीं माना उसने ना तो हमारी रिसालत को माना और ना अल्लाह की वहदानियत को माना। और नहीं कर रहे हैं आप? ना अल्लाह की वहदानियत को माना। इसका मतलब ये है कि जिसने अली की विलायत को मान लिया, मफहूम मुखालिफ यही हुआ ना, जिसने अली की विलायत को मान लिया उसने अल्लाह की तौहीद भी मान ली, नबी की रिसालत भी मान ली। अरे भाई बिल्कुल सामने की बात है। आप पहले क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अलीउन वलीउल्लाह। इसका मतलब ये है कि अलीउन वलीउल्लाह पीएचडी का नाम है। नहीं कर रहे आप मुतवज्जे ही नहीं है। अलीउन वलीउल्लाह पीएचडी का नाम है। ये है दलील, ये है दलील। भाई अगर आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो दुनिया आपसे सवाल कर सकती है कि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते हैं या नहीं। पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं। अगर आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो दुनिया आपसे सवाल कर सकती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते हैं या नहीं। अगर आप कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दुनिया सवाल कर सकती है अलीउन वलीउल्लाह मानते हैं या नहीं। लेकिन जब आप कहेंगे अलीउन वलीउल्लाह तो अब दलील मिल गई कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी मानते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मानते हैं। क्योंकि अलीउन वलीउल्लाह है दलील, दलील है, यानी नामे अली है दलील। दो दावे एक दलील, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दावा, अलीउन वलीउल्लाह दलील। भाई दो दावे एक दलील। देखता हूं कितना मुतवज्जे है। दो दावे एक दलील, नामे खुदा दावा, नामे रसूल दावा, नामे अली दलील। आज दुनिया हमसे पूछती है कि आप जब देखिए सिर्फ अली का जिक्र करते हैं, अली 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 अली। जहन में रखिएगा, अली है दलील, दो है दावे, अली है दलील। खुदा ना करे कभी किसी का कोर्ट से साबिका पढ़े, लेकिन अगर किसी का पढ़ा है
تو اسے پتا ہوگا کہ بھائی کیس چلتا ہے مہینوں، وکیل دعویٰ کرتے ہیں پہلے دن، ہر دن وہ دعوے نہیں کرتے، پتہ نہیں آپ متوجہ ہے کہ نہیں ہے، وہ روز روز دعوے نہیں کرتے ہیں، دعویٰ کیا کیس کے پہلے دن، اس کے بعد روزانہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے ماؤں سے سیکھا اور انہوں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، ہم نے یہ دعوے کر دیے، اب باری ہے دلیل کی، اسی لیے کہتے رہتے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ ہے دلیل، اور یہ دلیل ایسی نہیں ہے کہ وہ دعوے چھوڑ کے ہے، دعووں کے ساتھ دلیل ہے۔ وہاں تو دعوے ایک ہی دن ہوئے، یہاں دعوے روز ہو کے پھر یہ دلیل دی جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو علی کی ولایت ہے دلیل کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جنہیں چنا انہیں صاحب اختیار بنایا، انہیں اختیار دیا۔ متوجہ رہیے گا، جن کو اللہ نے چنا ان کو اختیار دیا ہے۔ اب مولا علی کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے، ہمارے بنائے ہوئے تو ہیں نہیں، نہ نبی کے بنائے ہوئے ہیں، نبی کے دکھائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ نبی نے دکھایا ہے، بنایا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں نبیوں کو بھی حق نہیں ہے بنانے کا، کر رہے ہیں؟ انسانوں کی بات نہیں، نبیوں کو بھی حق نہیں بنانے کا۔ بناتا ہے خدا، دکھاتا ہے نبی، دکھاتا ہے نبی۔ یہ کہیں ہوگا، کسی کو دیا گیا ہوگا اختیار بنانے کا، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں اچھا کہ اختیار تو نہیں دیا گیا ہے، اختیار تو یہ نہیں دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بات آ گئی ہے تو عرض کروں، دیکھتے ہیں آپ کتنا لطف اٹھائیں گے اس بات کا۔ مامون رشید دربار ہے، سجا ہوا ہے، اس نے اپنوں کو خالی بلایا کہ کوئی اب یہاں علی والا نہ آنے پائے دربار میں۔ آیا، علی والوں کو شوق بھی نہیں ہے دربار جانے کا، علی والوں کو تو شوق ہے فرش عزا پہ آنے کا۔ ہاں، کہا نہ آنے پائے، اب سارے اکٹھا ہو گئے، اس کے علماء بھی اکٹھا ہو گئے مامون کے، اور لوگ بھی، پورا دربار بھرا ہوا۔ تو وہ کہتا خود، کہتا یہ بتاؤ کہ کیا نبی پہ الزام لگانا، تہمت لگانا، سمجھدار مجمع ہے، میں کھل کے باتیں تو نہیں کر سکتا، اشارے کر سکتا ہوں۔ اور جو یہ کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، الحمدللہ وہ ہماری قوم پہ صادق آتا ہے۔ ہاں، اشارہ کیا جاتا ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اب اشارہ ہی کروں گا میں۔ تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں، سب اپنے ہی ہیں، تو یہ بتاؤ کیا ہماری اپنی کتابوں میں، یہ مامون کہہ رہا ہے، کیا ہماری اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو نبی پر جھوٹا الزام لگائے، نبی پر تہمت لگائے، وہ جہنمی ہے؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں یہ ہے اپنی کتابوں میں، وہ جہنمی ہے جو نبی پر تہمت لگائے۔ کہا اچھا کیا یہ بھی حدیث موجود ہے اپنی کتابوں میں؟ کہا کون سی؟ کہا جو بار بار گناہ دہرائے، ریپیٹ کرے گناہ، وہ بھی جہنمی؟ کہا ہاں۔ تو نبی پر تہمت لگانا گناہ ہے نا، اگر کوئی ریپیٹ کرتا رہے گناہ، بار بار کرتا رہے گناہ، تو وہ بھی جہنمی۔ اب دو حدیثیں اکٹھا ہو گئی، مامون کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ہمارے یہاں بھی موجود ہیں دو حدیثیں۔ کون سی؟ جو نبی پر تہمت لگائے وہ بھی جہنمی، اور جو بار بار گناہوں کا اصرار کرے، بار بار کرتا رہے گناہ، وہ بھی جہنمی۔ تو ایک مرتبہ بات جب یہ طے ہو گئی، علماء نے، اس کے تمام علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ حدیثیں دونوں ہیں کہ جو نبی پر تہمت لگائے، الزام لگائے، وہ بھی جہنمی، اور جو بار بار گناہوں کا اصرار کرے وہ بھی جہنمی۔ تو مامون کہتا پھر یہ بتاؤ جب یہ دو حدیثیں موجود ہیں تو جن کو تم خلیفہ رسول کہتے ہو، کیا انہیں رسول نے خلیفہ بنایا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں بنایا،
تو کہا جب نہیں بنایا تو خلیفہ رسول کہنا، رسول پہ الزام، اور بار بار کہنا اسرار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی صلوات تو بڑے محمد والے محمد، بار بار کہنا گناہوں کی تکرار ہے۔ اچھا آج دنیا یہ بھی بڑے شوق سے کہہ دیتی ہے کہ 2 کتابیں پڑھ کے، ہاں یہی میں کہوں گا، 2 ہی کتابیں پڑھ کے بیچارے کہہ دیتے ہیں یہ کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ ہاں پتہ نہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کب کس کو معاف کر دے، کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ ہاں جب اپنی بات آئے گی تو آستینے چڑھا کے اور وہ لفظ اپنی زبان سے نکالیں گے جو آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو پھر بھائی فرعون کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ نمرود کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ شداد کو، قارون کو، اور سب کو چھوڑ دیجئے، شیطان، اس کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، کر لے گا توبہ۔ کہا نہیں معصوم کے مقابلے میں یہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں۔ بھائی دیکھیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ بھی ہمارے نوجوان بھائی سمجھ لیں بات کو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بے شک کھلا ہے، آخری دم تک کھلا ہے توبہ کا دروازہ، مگر یہ بھی تو سمجھیے توبہ ہے کس کے لیے؟ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کس کے لیے؟ تو میں دلیل دے رہا ہوں۔ مولا علی چلے جنگ صفین کی طرف، آئے جنگ کے میدان میں، جب مولا ادھر آئے تو ادھر شام کے لشکر سے ایک اندھیروں کی اولاد آیا، نور سے لڑنے کے لیے۔ علی نے آواز دی واپس چلا جا، کہا نہیں جاؤں گا، کہا کلمہ پڑھ لے، کہا نہیں پڑھوں گا، کہا توبہ کر لے، کہا نہیں کروں گا۔ بھائی علی نے 3 باتیں کہی، واپس جا، نہیں جاؤں گا، کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھوں گا، توبہ کر لے، نہیں کروں گا۔ کہا تو ہم سے جنگ کرے گا، کہا اسی لیے آیا ہوں۔ علی نے کہا وار کر، اس نے وار کیا، علی نے اس کے وار کو رد کیا، اور اس کے بعد علی نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ اس کے سینے میں چبھویا اور اسے اٹھا لیا۔ جب اسے اٹھایا، بلند کیا، تو اسے نظر آئی موت۔ اس نے فوراً کہا یا علی میں کرتا ہوں توبہ۔ غور کیجئے گا، یا علی، اب دیکھتا ہوں کتنا متوجہ ہے، یا علی میں کرتا ہوں توبہ۔ علی نے کہا تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں۔ میں کہوں گا یا علی، ابھی چند لمحے پہلے آپ ہی کہہ رہے تھے توبہ کر لے، اب جب وہ راضی ہو گیا تو آپ کیوں نہیں توبہ کرنے دے رہے؟ آواز بھی میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک انسان معصوم کے مقابلے میں نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر معصوم کے مقابلے میں آیا، توبہ کا دروازہ بند، اب چاہے مقابلے میں آیا ہو چاہے آئی ہو۔ کر رہے ہیں ہاں، تو دیکھیے یہ دشمن اہل بیت سے مروت نہیں، اس لیے 5ویں امام خود فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ جب مقبول صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا وہ اٹھائیں گے تو اس کے حاشیے پہ دیکھیے گا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے 5ویں امام کی۔ امام نے فرمایا اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، رائے کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر ہمارے دشمنوں سے مروت کا پہلو آ گیا تو اللہ اوندھے منہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو یہ یاد رکھیے گا، سب ٹھیک ہے مگر ہاں اہل بیت کے دشمنوں سے اگر ہم مل جائیں تبھی یہ محبت کیسی ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، تو توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے جنہیں چنا، میں یہی عرض کر رہا تھا نا، اللہ نے جنہیں چنا انہیں صاحب اختیار بنایا ہے، اختیار دیا۔ تو علی کو بھی اللہ نے چنا تو انہیں بھی صاحب اختیار بنایا، اور ایسا اختیار دیا کہ خدا وہ ہے
مگر خدائی ان کو دے دی کہ اب اختیار یہ دکھائیں گے. مردے جلانے کی بات آئے ٹھوکر یہ مار کے جلا دیں گے، سورج پلٹانے کی بات آئے یہ سورج پلٹا دیں گے. اور کر رہے ہیں دیکھیے یہ سب آپ اگر یہ سوچیں گے کہ یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں تو یہ بڑی باتیں آپ کو لگ رہی ہیں کیونکہ ہماری عقل ہے اتنی، ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں علی کو. اور میں نے یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا کہ علی کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ماننے کی کوشش کرنا. سمجھنے نکلی تو تھی ایک قوم، مسحری بن کے چلی گئی، تو سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، ماننے کی کوشش کیجیے گا. اور امام نے راستہ بتایا کہ جو ہماری باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو ہماری طرف واپس کر دینا، انکار نہ کرنا. اس لیے کہ انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، واپس کرو گے تو پردے والا آ کے سمجھا دے گا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آیا تو ذوالفقار ساتھ ہی لائے گا. ہاں متوجہ رہیے گا. تو اللہ نے انہیں بنایا صاحب اختیار، کائنات پر اختیار دیا، مگر اللہ نے یہ علی کو جو اختیارات دیے یہ اللہ نے خود دیے، علی نے مانگے نہیں. چاند پر علی کا اختیار ہے، اللہ نے خود دیا، علی نے مانگا نہیں. سورج پر علی کا اختیار ہے، اللہ نے خود دیا، علی نے مانگا نہیں. چرندوں پر علی کا اختیار، پرندوں پر علی کا اختیار، ہواؤں پر علی کا اختیار، ستاروں پر علی کا اختیار، بادلوں پر علی کا اختیار، مچھلیوں پر علی کا اختیار، چیونٹیوں پر علی کا اختیار، فضا پر علی کا اختیار، ہوا پہ علی کا اختیار، گھٹا پہ علی کا اختیار، اجنہ پہ علی کا اختیار، انسانوں پہ علی کا اختیار، فرشتوں پر علی کا اختیار. بھائی یہ اختیار اللہ نے خود دیے، علی نے مانگے نہیں. اب دیکھتا ہوں جملہ کیسے آپ سنتے ہیں. اللہ نے یہ اختیار خود دیے، علی نے مانگے نہیں. وہ سلیمان تھے جنہوں نے مانگا تھا، علی نے نہیں مانگا. اللہ نے یہ اختیار خود دیے. اتنے بڑے حاکم کا نام ہے علی، اتنے بڑے سلطان کا نام ہے علی، اتنے بڑے بادشاہ کا نام ہے علی. پوری کائنات پر اختیار ہے علی کا، مگر علی نے یہ اختیار مانگا نہیں. دیکھتا ہوں کون کیسے جملہ سنتا ہے. بھائی پوری کائنات پر علی کا اختیار ہے، مگر علی نے یہ اختیار مانگا نہیں. اللہ نے یہ اختیار خود دیا ہے، علی نے مانگا نہیں. اتنے بڑے سلطان کا نام ہے علی. تو اب یہیں سے اندازہ لگائیے نہ جانے عباس کی سلطنت کا نام ہے کہ علی جیسا سلطان مانگ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس نے کچھ نہیں مانگا وہ مانگ رہا ہے. کیا مانگا؟ کہ پروردگار ایک ایسا بیٹا دے جو حسین کی نصرت کرے، حسین کی مدد کرے. ناصر مانگا ہے، علی نے ناصر مانگا ہے. اگر آپ متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی. علی نے ناصر مانگا ہے. کیا کہا؟ ایک ایسا بیٹا دے جو نصرت کرے. کیا علی کو معاذ اللہ پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں کتنے آئیں گے؟ کا معلوم تھا 9 لاکھ ہوں گے، 9 لاکھ ہوں گے. تو 9 لاکھ ہوں گے ادھر. مگر علی نے مانگا کیا؟ علی نے یہ نہیں کہا پروردگار مجھے ایک ایسا لشکر دے جو حسین کی نصرت کرے. تھوڑا ساتھ رہیے گا، تھوڑا ساتھ رہیے خدا کے لیے. علی نے یہ نہیں کہا پروردگار ایک ایسا لشکر دے جو نصرت کرے. آواز دی مجھے عباس دے. 9 لاکھ کے مقابلے میں 1 کو مانگا اور سمجھایا کہ ادھر کے 9 لاکھ ادھر ابروئے عباس کا اشارہ کافی ہے. مانگا کسے مانگا؟ عباس کو. علی مانگ رہے ہیں نا، علی مانگ رہے. اگر علی کی دعا رد ہو گئی تو قبول کس کی دعا ہوگی پھر؟ اب علی مانگ رہے ہیں عباس. تو آواز دی، مگر طریقہ ہے، سنیے گا، چونکہ ان کے ہی افعال تو شریعت بن جاتے ہیں. تو علی نے آواز دی بھائی عقیل ایک ایسا خاندان، علیکم السلام، ایک ایسا خاندان تلاش کرو
कि जहाँ की लड़की शुजा बहादुर हो, जिससे एक शुजा बेटा इस दुनिया में आए जो हुसैन की नुसरत करे। देखिए, अली को सब कुछ पता था कि वो लड़की कौन है, वो ख़ानदान कौन है, वो कबीला कौन सा है, सब कुछ पता था। अरे जिसकी तलवार 70 नस्लें देख के चलती हो, क्या उस अली को नहीं पता है कि शादी कहाँ होना है? पता है, मगर दुनिया को सबक दे रहे हैं कि देखो शादी करने के तरीके क्या हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा, और ये भी किताबों में मौजूद है, उलमा ने तहरीर किया है कि जब भी शादी करना हो तो अपने लिए बीवी ना ढूंढना, अपने बच्चों की माँ ढूंढना। जैसा चाहते हो कि बच्चे हों वैसी लेके आना। हाँ, वैसी लेके आना। कल्चर से कल्चर मिलता हो, मिजाज से मिजाज मिलता हो, खान पान से खान पान मिलता हो, सारी चीज़ें मिलती हो तो ही आखिर तक रिश्ता चलता है, वरना बीच से ही रास्ते बदल जाते हैं। हाँ, बीच से ही रास्ते बदल जाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि एक जैसा कल्चर होना चाहिए, हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए, मिलते जुलते होना चाहिए। गौर कर रहे हैं आप? कल्चर से कल्चर मिले, मिजाज से मिजाज मिले, खान पान से खान पान मिले तो वो लड़की आके रह सकती है, वरना आने को तो आ जाएगी लेकिन एक दिन कल्चर समेत मैदान में भी आ जाएगी। नहीं कर रहे आप? भाई अभी मैंने कहा ना, इशारे तो आप ही समझते हैं ना। हाँ, तो आने को तो आ जाएगी लेकिन मैदान तक भी पहुंच जाएगी। तो हाँ, सोच समझ के शादी करना है। अब आवाज दी कि अकील तलाश करा वो खानदान, आवाज दी भाई वो कबीला है कलाबिया, उस खानदान की लड़की आप ले आइए। बहादुर है, शुजा है, पाको पाकीज़ा है, नाम है, सखी है। कौन का? हुज़ाम और कीजिएगा, हुज़ाम है जनाबे उम्मुल बनीन के बाबा। जनाबे उम्मुल बनीन के बाबा का नाम है हुज़ाम, और जनाबे उम्मुल बनीन की माँ का नाम है समामा। याद रखिएगा, समामा नाम है जनाबे उम्मुल बनीन की माँ का नाम। और आसान करूं, मौला अब्बास के नाना का नाम है हुज़ाम और नानी का नाम है समामा। बहुत पाको पाकीज़ा खानदान, शुजा बहादुर सखी खानदान। जनाबे अकील चले अब अक़द अली के वकील बनके। कर रहे हैं? जनाबे अकील अक़द अली के वकील बन के चले आए। हुज़ाम के दरवाजे पर दक्कुल बाब किया। सरदार थे ये अपने कबीले के, नाम था एक, गौर की जगह। दरवाजा खोला, अरे आप आइए, यहाँ क्यों खड़े? मेरे लिए तो शरफ है कि आप मेरे घर आए हैं। जनाबे हुज़ाम भी ऊपर जाके ये बनी हाशिम से ही मिलते हैं। हाँ, ये दोनों एक ही कबीले की दो शाखें हैं। ये कलाबिया भी उधर चला गया और बनी हाशिम ये इधर आ गया। ऊपर जाएंगे अगर रिश्तों में तो ये दोनों, कभी वक्त मिला तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ऊपर ये भी सब हाशिमी हैं, ऊपर जाके गौर कीजिएगा। तो अब आवाज दी, अकील आप आइए, यहाँ क्यों खड़े हैं दरवाजे पर? आपका घर है, मेरे लिए तो शरफ है कि आपके कदम मेरे घर आ जाएं। आ गया अकील। सरदारों की मसनद अलग होती थी, ये थोड़ी सी तारीख है, इसको बर्दाश्त कर लें, आगे लुत्फ आएगा। मसनद होती थी सरदार की अलग, उस मसनद पे सरदार ही बैठता था। तो अब जनाबे हुज़ाम आए, जनाबे अकील एक किनारे बैठ गए। तो हुज़ाम ने कहा, नहीं सरकार, आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आप सरदार वाली कुर्सी पर बैठिए। कहा, वो तो आप हैं। कहा, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ लेकिन मेरे तो आप सरदार हैं, इस कुर्सी पर आप बैठेंगे। सुनिएगा, शायद याद रह जाए। इस कुर्सी पर आप बैठेंगे। लीजिए, जनाबे अकील बैठे। जनाबे हुज़ाम इतने सखी थे कि ये किसी भी आने वाले से 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे कि क्यों आए हो। हाँ, जनाबे हुज़ाम की सखावत इतनी मशहूर थी कि ये 3 दिन तक अपने घर मेहमान रखते थे, खिदमत करते थे, मगर पूछते नहीं थे आए क्यों, मकसद क्या है।
सबब क्या है? तो 3 दिन तक जनाब अकील की खिदमत की, 3 दिन तक जनाब अकील की खिदमत की, पूछा नहीं क्यों आए हो। आम लोगों से नहीं पूछते थे, तो जिन्हें सरदार कह चुके हैं उनसे कैसे पूछे। तो जब 3 दिन गुजर गए तो जनाब अकील ने खुद ही कहा, आवाज दी, हुजाम मैं एक मकसद के तहत तुम्हारे घर आया हूं। आका बयान कीजिए। आवाज दी हुजाम के अकील, अरे हुजाम क्या तुम अली को जानते हो? हुजाम कहते हैं, अरे आका कैसी बातें कर रहे हैं, वो अंधई होगा जो अली को ना पहचानता हो। आवाज दी तो हुजाम बात यह है कि मैं एक रिश्ता लेके आया हूं। आका किसका रिश्ता? और कैसा रिश्ता? कहा तुम्हारी बेटी फातिमा कलाबिया उम्मुल बनीन, मैं उनके साथ शहंशाह कौनैन यासूबुद्दीन कायदे गुर्रिल मुहज्जलीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता लेके आया हूं। हुजाम तो खुशी के मारे भूले न समाए कि कौनैन के बादशाह का रिश्ता हमारे घर। कहा ये तो शरफ की बात है, मैं राजी हूं, तैयार हूं। गौर कीजिएगा, मैं राजी हूं, तैयार हूं, अक्द हो जाएगा, तारीख बताइए, दिन बताइए, अक्द हो जाएगा। तो जनाबे अकील ने कहा, नहीं हुजाम मुझे पता है तुम बेटी के वली हो, सब सही है, मगर हाँ बेटी से भी पूछना जरूरी है, बेटी की मर्जी लेना जरूरी है कि उसकी क्या मर्जी है। बेटी से पूछा गया तो बेटी ने ख्वाब बयान किया। कहा मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरी आगोश में 3 सितारे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे सर पर ताज है। तो एक मर्तबा कहा, फिर मकसद समझ गया। बेटी ने खामोशी के जरिए रजामंदी का इजहार किया और जनाबे हुजाम ने आके शादी तय कर दी। बेटी से पूछा और आके तय कर दी शादी, और दुनिया को पैगाम दिया कि देखो शरीफ कबीले कैसे होते हैं। शरीफ कबीले बेटियों से पूछ के रिश्ता करते हैं, दरवाजों पर लाके डाला नहीं करते हैं। पता नहीं कौन समझा कौन नहीं समझा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, तारा टूट कर मौला, अली मौला, अली मौला। नारे गौर कर रहे हैं आप? तो लीजिए, अब अक्द हुआ, अक्द हुआ। कौनैन का शहंशाह दूल्हा बनके उम्मुल बनीन के दरवाजे, अब शहजादी उम्मुल बनीन चली आई दरवाज़े अली पर, चौखट को बोसा दिया। हाँ, दुनिया कहती है ना इमाम बाड़ों में जाते हैं तो दहलीज क्यों चूमते हैं। हिम्मत है तो अब्बास की माँ से पूछ के बताओ। अरे अली पर आए, दहलीज चूमी, हाँ सर झुकाया, सर झुकाया, आ गई अंदर। और कीजिए, आ गई। हसनैन ने कहा माँ, नहीं माँ ना कहना, मैं तो आपके खिदमत गुजार बन के आई। और की जगह ये एक अलग तारीख है, अलग चलता है कि बीबी ने क्या कहा, कहा कि मैं तो आप बतूल के लाल हैं, आप ज़हरा के फर्जंद। सुनिएगा, लीजिए वो वक्त आया, सारी बातों को छोड़ रहा हूं, वो वक्त आया कि आफ्ताबे इमामत के घर कमरे बनी हाशिम चमका। अब जुमलों का लुत्फ भी अगर आप नहीं उठाएंगे तो कहां लेके जाऊं ये। सूरज के घर चांद आ गया, और कर रहे हैं आप, चांद आया। इस घर का कानून है कि जो भी बड़ा होता है नाम वही रखता है। अली की आगोश में दे दिया गया। सूरज ने चांद को देखा। ये मंजर कभी कभी नजर आता है, ये गदीर में नजर आया था, ये आप नजर आ रहा है। और कर रहे हैं, चांद को देखा, लुत्फ उठाते रहिए। चांद को देखा, नाम रखना।
मासूम फरमाते हैं कि अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो। हम लोग को हुक्म दे रहे हैं मासूम फरमाते हैं अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो, जो समझ में आए वो नाम नहीं रखना। ये बाप का फरीजा है कि अपने बच्चों का नाम अच्छा रखे। जैसे माँ का फरीजा है तरबियत अच्छी करना, वैसे ही बाप का फरीजा है तालीम अच्छी दिलवाना और नाम अच्छा रखना। ये बाप का फरीजा है, बेटों का नाम औलाद का नाम अच्छा रखना बाप का फरीजा। वो फिर बात की बात है कि हरकतें देख के महल्ले वाले खुद रख लेंगे, वो बात की बात है, लेकिन बाप का फरीजा ये है कि अच्छा नाम रखे। और कर रहे हैं, बाप का फरीजा ये है कि अच्छा नाम रखे। बाप का फरीजा हर बाप को चाहिए है कि अच्छा नाम रखे। अब जुमला कहूं जिसकी तारीख पर नजर है वो इंशाल्लाह समझ जाएगा। जो मासूम हमसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो, क्या वो मासूम अपने बच्चों का नाम अच्छा ना रखेंगे? पता नहीं कौन समझा ये जुमला, कौन नहीं समझा। अब जो दुनिया कहती अली के बेटे का ये भी नाम था, ये भी नाम था, ये भी नाम था, जाके किताबें पढ़ो। हाँ, और याद रखिएगा मैं आपकी खिदमत में, मैं बहुत कुछ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक जाहिल इंसान हूँ, लेकिन दरे आले मोहम्मद से जो कुछ हासिल किया है बाबे मदीनतुल इल्म से, वो चाहता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, और पढ़ के भागता भी नहीं हूँ। हाँ, न भागने वालों को मानता हूँ न भागता हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ। कभी कभी कामरान साहब यही बंद कर देते हैं इसमें। हाँ, भागता नहीं हूँ, सबको खाना खिला के बाद में जाता हूँ। हाँ, तो अगर कोई ऐसी बात है नहीं जहन हाजिर है, समझ में नहीं आया, तो आके खुद पूछ सकते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सारी बातें जानता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा मुतमईन करने की, समझाने की। और अगर नहीं कोशिश कर पाया तो अपने असातिज़ा से पूछ के बताऊंगा। मैं कोई जिद्दी थोड़ी हूँ। हाँ, मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ, और मैं मूसा का थोड़ी हूँ, बनी इस्राइल से थोड़ी आया हूँ। हाँ, जिद्दी नहीं हूँ, मैं पूछ के बता दूंगा आपको, कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, इधर उधर मसलन अक्सर यही होता है, अक्सर बातें यही, फसाद यूं ही फैलता है कि मिसाल के तौर पर पढ़ी कोई चीज हमने और पूछ रहे हैं आप इनसे, कर रहे हैं कि ये कहां से पढ़ दिया। अरे भाई, जब उन्होंने पढ़ी ही नहीं तो कहां से बताएंगे? बात किसकी है, पूछ किससे रहे हैं आप? और कर रहे हैं आप, बात किसकी है, पूछ किससे रहे हैं आप? तो ऐसे लोगों का काम होता है लोगों को गुमराह करना, फसाद कराना। ऐसे लोगों का यही काम होता है, गुमराह करना, फसाद कराना। के बाद जिसकी होगी उससे नहीं पूछेंगे, दवा लेंगे किसी से, दिखाएंगे किसी और को। हाँ, तो जो नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप आके सवाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ सवाल की इजाजत भी दी गई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सवाल करने की इजाजत नहीं, कोई रोकथाम थोड़ी है। आइए, कोई सिक्योरिटी लेके थोड़ी चलता हूँ मैं। हाँ, क्या आपको हमारे पास नहीं आने दिया जाएगा? आइए, आप आइए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझे मालूम है उतना बताने की कोशिश करूंगा। नहीं मालूम होगा साफ बता दूंगा, भाई ये मुझे नहीं आता है, मैं पूछ के बता दूंगा। इसलिए कि इस मामले में मैं शर्माता नहीं हूँ। हाँ, गलत बताने से अच्छा है पूछ के बताया जाए। तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो मैं पढ़ता हूं वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सारे हवाले मौजूद हैं, गौर कीजिएगा। अब ये खिताबत का एक अंदाज अलग होता है, मफहूम वही होता है, और इसकी इजाजत खुद उलमा ने भी दी है, मासूमीन ने भी दी है कि मफहूम वही हो, अपने अंदाज में आप बयान कर सकते हैं। गौर कीजिएगा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, आफ्ताब इमामत ने कमर बनी हाशिम को देखा, आगोश में दिया। नाम रखने की जब बात आई तो कहा अली रखेंगे। अब हुक्म है कि अच्छे नाम रखो, तो जो हमसे कह रहे हैं क्या वो खुद अच्छा नाम ना रखेंगे? तो जाहिर है अच्छे ही नाम रखेंगे। तो अच्छे नाम रखने के लिए अच्छे हर्फ हों जो जमा किए जाएं, जिससे लफ्ज बने। गौर कर रहे हैं आप? अब पहले आइए, अब्बास, नाम अली ने अब्बास रखा है ना,
अब्बास में कितने हर्फ हैं? 4। ऐन, बे, अलिफ, सीन। कितने हर्फ हैं? 4। ऐन, बे, अलिफ, सीन, ये 4 हर्फ हैं। हुक्म है अच्छे नाम रखो। अच्छे नाम रखने के लिए अच्छे हर्फ होना जरूरी है, तभी तो वो लफ्ज बनेगा। और अच्छे हर्फ जहां से लिए जाएं वो लफ्ज का भी अच्छा होना जरूरी है। तो अब नाम रख रहे हैं अली, तो अली ऐसे नाम तो रखेंगे नहीं, कायनात पर नजरें दौड़ाई होंगी। फिर ये 4 हर्फ चुने और नाम अब्बास रखा। गौर कर रहे हैं आप, नाम अब्बास रखा। अब ये 4 हर्फ याद रखिएगा। यहीं पे फिर पलट के आ रहा हूं, पहले आपकी फितरत से बात करता हूं। ठोकर लगती है, आप क्या कहते हैं? या अली, है ना। लेकिन जब हम पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो फौरन जो जहन में सबसे पहले नाम आता है वो यही आता है कि चलो परचम अब्बास कहाँ है, मौला अब्बास की बारगाह चलो। गौर कर रहे हैं मौला अब्बास। हमारे लखनऊ में तो ये है कि जैसे ही कोई बड़ी मुसीबत आई वहीं पे जो लोग लखनऊ के हैं या आसपास के हैं या जाते रहते हैं वो जानते हैं, जहां मौला अब्बास की दरगाह है वहीं पे नजफ है, वहीं पे फातिमैन है, वहीं पे जनाबे कासिम का रोजा। गौर कर रहे हैं आप, वहीं पे मौला अली का रोजा, जनाबे जहरा का रोजा। और थोड़ी दूर पे जाएंगे, थोड़ी सी दूर है, पैदल जा सकते हैं, काज़मैन, वहीं पे इमाम हुसैन की बारगाह। गौर करें आप, सारे रोजे आसपास बने हुए हैं। लेकिन जब बड़ी मुसीबत पड़ी तो सबकी जबान से यही निकलता है, चलो दरगाह चलते हैं, चलो मौला अब्बास की बारगाह चलते हैं। गौर कर रहे हैं, मौला अब्बास की बारगाह। हमारे घर की खवातीन मुनाजात लेके खड़ी हो जाती हैं, अब्बास कटे हाथों का एजाज दिखा दो। तो भाई ठोकर लगी, अली को पुकारा, बड़ी मुसीबत आई, मौला अब्बास को पुकारा। अब सब खामोश रहे, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। लेकिन जो मौला अब्बास से अकीदत रखता है और जितनी अकीदत रखता है और जो अपने बाजुओं को मौला अब्बास के बाजुओं का सदका समझता है वो ताईद जरूर करे। गौर कीजिएगा भाई, वहीं पे मौला अली का भी रोजा। लेकिन सबसे पहले आवाज निकलती है, चलो बारगाह अब्बास में चलते हैं। तो ठोकर लगी, अली को पुकारा, बड़ी मुसीबत आई, मौला अब्बास को पुकारा। क्यों? वजह शायद ये रही हो कि नाम रखना है अच्छा, और अच्छे नाम के लिए अच्छे हर्फ होना जरूरी। तो अब अली ने 4 हर्फ चुने। कहां से चुने? का अच्छे लफ्जों से। तो अच्छे लफ्ज कौन? का अच्छे लफ्ज तो वही जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया हो। का अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया? का अल्लाह ने तो पंजतन के नाम रखे। तो शायद अली ने पंजतन के नामों से अब्बास के नाम को चुना। का कैसे? का शायद अली ने अपने नाम अली से ऐन को लिया हो, बतूल से बे को लिया हो, अहमद से अलिफ को लिया हो, और सिबताइन से सीन को लिया हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं नतीजा दे रहा हूं भाई, पंजतन के नामों से ये हर्फ चुने हो। शायद अली ने अपने नाम अली से ऐन ले ली हो, बतूल से बे ले ली हो, अहमद से अलिफ ले लिया हो, सिबताइन से सीन ले ली हो, और नाम अब्बास रखा और दुनिया को पैगाम दिया, अगर कोई एक लफ्ज में पंजतन को पुकारना चाहता है तो यह अब्बास का है। हाँ, हो सकता है किसी का जहन में आ रहा हो कि एक लफ्ज में अस्माए पंजतन कैसे सिमट गए, तो जवाब दे दीजिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नुक्ते में पूरा कुरान। नुक्ते में कुरान समझ में आता है, लफ्ज अब्बास में अस्माए पंजतन सिमट जाए समझ में नहीं आता। है आप? हाँ, तो नाम रखा अब्बास। अब्बास का मतलब है शेर। अरबी में शेर के नाम बहुत सारे हैं।
हर अदा पे शेर का नाम बदलता है। शेर बैठा हो तो कुछ और नाम है, शेर खड़ा हो जाए तो कुछ और नाम है, शेर दहाड़ने लगे तो कुछ और नाम है, शेर कछार में हो तो कुछ और नाम है, शेर तराई में हो तो कुछ और नाम है, शेर खुश्की में हो तो कुछ और नाम है, शेर सो रहा हो तो कुछ और नाम है, शेर जाग रहा हो तो कुछ और नाम है, शेर हमला मुंह से करे तो कुछ और नाम है, पंजों से हमला करे तो कुछ और नाम है, हमला करके खा जाए तो कुछ और नाम है, हमला करके मार के छोड़ के चला जाए तो कुछ और नाम है, बुलंदी पे हो तो कुछ और नाम है, पस्ती में हो तो कुछ और नाम है। किसी शेर को जरगाम कहते हैं, किसी शेर को जैगम कहते हैं, किसी शेर को असद कहते हैं, किसी शेर को हैदर कहते हैं, किसी शेर को अब्बास कहते हैं। और कर रहे अब अब्बास कौन से शेर को कहते हैं जानते हैं? आहिस्ता से कहूंगा। अब्बास कौन से शेर को कहते हैं? अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसको देख के शेर सामने ना रुके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके सामने शेर भी ना रुके, उस शेर को कहते हैं अब्बास। अरे क्यों ना हो ऐसा शेर, शेर खुदा ने नाम रखा है। शेर खुदा ने नाम रखा है, नाम अब्बास। अब लीजिए, मौला अली के घर में, कुरान के घर में ये कुरान पलने लगा। और कीजिए, लफ्जों का लुत्फ उठाते रहिए इंशाअल्लाह। हाँ, दुनिया अक्सर एक, मैं ये जुमला कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, जो नहीं रहे होंगे तो वो भी सुन ले कि अक्सर दुनिया कहती है फज़ाइल ये मनाकिब बयान करते हैं मोमिनीन को खुश करने के लिए। खुश हो गए, खुशी के अलावा क्या मिला? अरे पांचवें इमाम और नबी से ये सवाल किया गया कि मौला बताइए सबसे बेहतर अमल क्या है? तो दोनों मासूम ने एक ज़बान होकर कहा सबसे बेहतर अमल है मोमिनीन के दिलों को खुश करना। तो अगर फजाइल के जरिए खुश कर दिया जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? है ना? अगर फजाइल के जरिए खुश किया जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा? देखिए, असलन दुनिया को फजाइल अच्छे नहीं लगते। क्यों? का इसलिए कि फजाइल के जरिए आप अहले बैत को पहचान लेंगे, और दुनिया यही तो नहीं चाहती है क्या पहले बैत को पहचाने। क्यों? कि अगर आपने अहले बैत को पहचान लिया तो हमारी दुकान का क्या होगा? एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, फजाइल पे बाकायदा 11वें इमाम के जमाने में, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, बस 2 जुमलों में, पूरा वाकया नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा कि जाओ इमाम के घर जाओ, 2 सिपाहियों से बादशाह कहता है जाओ घर जाओ, 11वें इमाम का जमाना, घर जाना, वहां देखना दरवाजे पर 2 हबशी गुलाम खड़े होंगे, फिक्र नहीं करना, अगर वो रोकने की कोशिश करे तो कत्ल कर देना और अंदर बगैर इजाजत के घर चले जाना। और फुला वहां जब घर जाओगे तो जैसे ही अंदर जाओगे एक सरदार नजर आएगा, तहखाना नजर आएगा, उस सरदार में चले जाना, वहां जो मिले कत्ल करके सर ले आओ, क्योंकि उसे मुखबिरी दी गई थी कि इमाम सरदार में है, 11वें इमाम। और कीजिएगा, इमाम सरदार में है। अब सिपाही 2 चले आए, गुलामों ने रोकने की कोशिश की, इन्होंने हटाया, अंदर चले गए, और सरदार में जब पहुंचे तो अजब मंजर देखा। दोनों सिपाहियों ने क्या मंजर देखा? जैसे ही सरदार में गए देखा एक समंदर है, मौजे मारता हुआ समंदर, और बीच समंदर में 11वें इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। अब वहां जाएं कैसे? ये देख के थर्राने लगे, हाथों से तलवारें गिर गईं। कहा मुझे माफ करना, ये कह के वापस आए फौरन दौड़ते हुए दरबार में दोनों सिपाही। कहा अजब मंजर देखा। कहा क्या देखा? कहा मैंने देखा कि वो तो इमाम जिनका सर काटने भेजा था, वो तो अल्लाह के बनाए हुए मनसूस मिनल्लाह इमाम है। कहा देख ऐसा क्या लिया? कहा 20 समंदर पे नमाज कौन पढ़ता है? नमाजों पर बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे, मुसल्ला बिछा हुआ था, तो एक मरतबा बादशाह कहता है किसी को बताया तो नहीं? कहा नहीं। कहा अगर बताया तो गर्दन उड़ा दूंगा। अब समझे फजाइल रोकना किसकी सीरत है? और कहते बताना नहीं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि कुरानों के बीच ये कुरान, बात पहुंच रही है ना?
याद है ना, अब्बास दिलावर पढ़। शजाअत बड़ी मशहूर हुई। सुनिएगा, देखिए ये जो मजलिस होती ना फजाइल वाली, ये बड़ी मेहनत की मजलिस होती है। इस मेहनत को खुदा के लिए ज़ाय ना कीजिएगा, इसलिए कि इस मजलिस के लिए किताबें पढ़ना पड़ती हैं। न जाने कितनी किताबें पढ़ना पड़ती हैं, तब जाके कहीं दो फजीलतें मिलती हैं जो आप तक लेके आते हैं। बड़ी मेहनत वाली, न जाने कितने सफ़े रातें गंवाना पड़ती हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते रहिए, कुछ नहीं मिलता है। हाँ, आपके लिए मैं मसाइब से फ़ज़ाइल लेके आया हूँ और इंशाअल्लाह सुनेंगे तो महसूस होंगे। गौर कीजिएगा और जल्दी जल्दी अर्ज़ करना, सारी बातें तो नहीं अर्ज़ हो सकती हैं, मगर फिर भी कोशिश करूँगा कि वक्त के अंदर जितनी बातें हो सके आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। शजाअत बड़ी मशहूर हुई मौला अब्बास की। ऐसे शजा, ऐसे बहादुर, ऐसे दिलैर कि तारीख़ कहती है जनाब औन मोहम्मद को भी जंग सिखाई, जनाब कासिम को भी जंग सिखाई, जनाब अली अकबर को भी जंग सिखाई। मौला अब्बास सुनिएगा, जंग सिखाई है। जनाब औन मोहम्मद को सुबह के वक्त एक तालाब के किनारे जंग सिखा रहे हैं। एक खातून जिसका शौहर बड़ा शुजा था, बहादुर था, तलवार के बहुत हुनर जानता था। अक्सर दावतें दे के बुलाया जाता था। जब कभी लश्करों में जंग होती थी, दो लश्करों में, तो इसे दावत दे के बुलाया जाता था कि मेरी तरफ से लड़ो, इतना इनाम मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हुनर जानता था तलवार के। औरत ने अपने शौहर को इसको खाना दिया। सुबह का वक्त है, कहा तुम खाओ, मैं बराबर के तालाब से पानी लेके आती हूँ। पहले कुएँ और तालाब ही होते थे, दरिया वगैरह, पानी लेके आती। वो पानी लेने के लिए गई, देखा जनाब अब्बास औन मोहम्मद को जंग सिखा रहे हैं। देखने लगी, देर हो गई। वापस जब पानी लेके आई, शौहर गुस्से में आवाज़ दी, इतनी देर कहाँ लगा दी। शुजा था, बहादुर था इसका शौहर, बहुत तलवार के हुनर जानता था। कहा इतनी देर कहाँ लगा दी, तालाब तो करीब में ही। इसने तलवार निकाली और कहा मैं गर्दन उड़ा दूंगा, आज तुझे कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। इतनी देर कहाँ लग गई। जैसे ही शौहर ने तलवार निकाली, ज़ौजा ने दूसरी तलवार उठा ली। दूसरी तलवार उठा ली। बस एक मर्तबा, इसका मारने का इरादा नहीं है। शौहर ने मारने के लिए कहा, लेकिन औरत मारने का इरादा नहीं है इसका, अपने बचाव के लिए तलवार उठाई। अब शौहर को आते थे बहुत सारे तलवार के हुनर, उसने सीखी थी जंग। अब एक मर्तबा शौहर ने इधर से वार किया, ज़ौजा ने रद्द कर दिया। उसने इधर से वार किया, ज़ौजा ने रद्द कर दिया। उसने इधर से वार किया, ज़ौजा ने रद्द कर दिया। सामने से आके वार किया, ज़ौजा ने रद्द कर दिया। जितने तलवार के हुनर इसे आते थे सब आजमाए, ज़ौजा ने सारे हुनर रद्द कर दिए। आखिर थक हार के ये तलवार फेंक के कहता है, तूने जंग किससे सीखी है। आवाज दिया, अरे मैंने सीखी नहीं है, मैंने तो सिर्फ देखी है। सुनिएगा, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज करना है। जनाब कासिम को जंग सिखा रहे, बेटा कासिम, जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा पहलवान आए जो कद में बड़ा तवील हो, हाइट ज्यादा हो उसकी, ऐसे हमला न करना। का फिर का रहवार थोड़ा पीछे लेना, का फिर रहवार पीछे लेके दौड़ा देना, और जब दौड़े रहवार तो दौड़ते हुए रहवार की लजाम को खींच लेना, और जब दौड़ते हुए रहवार की अचानक लजाम खींचोगे तो घोड़ा उछल जाएगा, उसी उछलने में वार कर देना। तुम्हारा वजन होगा, घोड़े का वजन होगा, दुश्मन दो टुकड़े हो जाएगा। ये जंग सिखाई जा रही है। तो अब ऐसा सजा हुसैन के साथ मौजूद है। अब थोड़ा अपने को रोकते भी रहिएगा और फजाइल सुनते रहिएगा। मैंने कहा ना, मैं मसाइब से फजाइल लेके आया हूं आपके लिए, गौर कीजिएगा। ऐसा सजा हुसैन के साथ है तो फिर इजाजत क्यों नहीं दी? सवाल तो है ना, एक इजाजत क्यों नहीं? तो सुनिएगा, जो असल वजह है वो इमाम जाने, वो राज है, वो या पर्दे वाला आके बताएगा या इमाम हुसैन जाने या खुदा जाने क्या राज है। लेकिन एक हल निकाला जाता है, हल आप तक पेश कर रहा हूं, गौर कीजिएगा, लुत्फ उठाइएगा। ये कोई किताब की बात नहीं है, ये एक फिक्र पेश कर रहा हूं। मौला अब्बास है सजा और बहादुर, गौर कर रहे हैं। इतने सजाएं कि चौथे इमाम एक मर्तबा लश्कर यजीद को देखते हैं, शबे आशूर, लश्कर यजीद को 9 लाख को देखते हैं। उसके बाद इमाम ने कहा था कि मेरे बेटे से जंग साकित कर दे, गौर कीजिएगा। 9 लाख को देखा, कहा बाबा बस
यजीद के पास इतने ही है। कहा बेटा 9 लाख है, कहा इससे तो मैं लड़ूंगा, मेरा चचा अब्बास तो बाद में लड़ेगा। और कर रहे हैं तो इमामत तायीद कर रही शजाअत अब्बास गाजी की। अब सुनिएगा, ऐसा सजा मौजूद है, इजाजत क्यों नहीं मिली? तो शायद वजह यही रही हो, मैंने कहा ना कोई किताब की बात नहीं, फिक्र पेश कर रहा हूं, शायद वजह यही रही हो कि चूंकि इमाम हुसैन है तीसरे इमाम, इमाम हुसैन है तीसरे इमाम, और फहरिस्त इमामत इमाम हुसैन पर तमाम नहीं होगी। इमाम हुसैन के बाद 9 इमाम आना और बाकी है, ये वहां लिखा जा चुका है। और जहां यह लिखा जा चुका है कि इमामत पहुंचेगी 12 तक, वहीं यह भी लिखा जा चुका है कि जब तक फहरिस्त इमामत मुकम्मल नहीं होगी कयामत नहीं आएगी। जो समझ गया उसे सलाम है। जब तक इमामत मुकम्मल नहीं होगी कयामत नहीं आएगी। तो अभी इमाम हुसैन है तीसरा इमाम, अभी 9 इमाम आना और बाकी है। अब समझे, इमाम हुसैन ने अब्बास को नहीं रोका है, कयामत को रोका है। वरना उसी दिन हश्र बर्पा हो जाता, कयामत का मंजर होता, कयामत का मंजर होता। ऐसा शजा, ऐसा दिलेर, ऐसा बहादुर, ऐसा जरी, अल्लाहु अकबर। तारीख कहती है मौला अब्बास फुरात में गए, चुल्लू में पानी लिया, 1000 दफा सुना है, चुल्लू में पानी लिया ना, क्यों लिया? पीने के लिए, सोचिएगा भी नहीं, वफा पे आंच आ जाएगी। चुल्लू में पानी लिया पीने के लिए नहीं, तसव्वुर भी ना कीजिएगा, वफा पे आंच आएगी। हाँ, तो ये तो रवायत है कि चुल्लू में पानी लिया, तो फिर क्यों लिया? तो सुनिएगा, कुरान भी कह रहा है और रवायतें भी कह रही हैं। इरशाद हुआ कि वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य, हर शय की जिंदगी पानी है, यानी पानी का दूसरा नाम है जिंदगी। पता नहीं आप मुतवज्जे है कि नहीं? पानी का दूसरा नाम है जिंदगी। जमीन जिंदा पानी से, हैवान जिंदा पानी से, पेड़ पौधे जिंदा पानी से, इंसान जिंदा पानी से। अगर पानी ना हो तो हर जानदार शय मर जाए। इसका मतलब पानी पानी नहीं है, पानी है जिंदगी। अब आहिस्ता से जुमला कहूं, पानी पानी नहीं है, पानी है जिंदगी। अब समझे, फुरात में जाके मौला अब्बास ने चुल्लू में पानी क्यों लिया? अरे पीने के लिए नहीं लिया, चुल्लू में पानी लेके जालिमों को दिखा रहे थे, देखो तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। अल्लाहु अकबर। या अली, या अली, तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। सुनिएगा, या अली। पानी पानी नहीं, पानी जिंदगी तुम्हारी, मजबूर न समझना। हाँ, अख्तियार है, गौर कीजिएगा, अख्तियार है, तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। शबे आशूर, सारी बातों को फिर छोड़ो। मोहलत की बात सुनी हुई है ना, मौला हुसैन ने कहा कुछ मोहलत की बात करना। मैं अपनी जबान से कभी ये नहीं कहता हूं कि मोहलत लेने की बात, मोहलत देने की बात करने की बात। इसलिए शुजा मोहलत लेते थोड़ी हैं, देते हैं। हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो चलिए देने ही की बात सही, तो फिर मोहलत दी क्यों? तो मोहलत इसलिए दी कि अभी एक इधर का उधर है, अभी एक इधर का उधर है, अभी हुर आया कहाँ है, इसलिए मोहलत दी है। और कर रहे हैं आप, तारीख है, 2 रवायतें, 2 रवायतें। अगर हुआ तो दोनों ही सुनाई देता हूं, अगर जल्दी जल्दी, वरना अगर एक ही पे वक्त तमाम हो गया तो फिर कभी मौका मिला तो दूसरी को सुना दीजिए। एक रवायत यह है, बस एक एक जुमला सुनाता हूं। एक रवायत यह है कि जब मौला अब्बास चले
तो आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब व ज़ुहैर। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब व ज़ुहैर। आधी रात गुजर चुकी है, 9 लाख के सामने आए। हाँ, पूरी रवायत नहीं पढ़ूंगा। 9 लाख के सामने जो बातें हुई हो गई, वापस चले। जब वापस चले तो हबीब व ज़ुहैर ने पुश्ते मौला अब्बास को देखा, आपस में कसीदे पढ़ना शुरू किए। अली की शजाअत का वारिस, अली की ताकत का वारिस, अली की हिम्मत का वारिस, अली की जुर्रत का वारिस, अली की तलवार का वारिस, अली की कुव्वत का वारिस। मौला अब्बास ने रहवार रोका, हबीब व ज़ुहैर को देखा, आवाज़ दी, हबीब व ज़ुहैर, हमारी शजाअत के कसीदे पढ़ के हमें जोश दिला रहे हो? ए हबीब व ज़ुहैर, ये आधी रात गुजर चुकी, अगर इसी वक्त तुम मेरे आका हुसैन से लड़ने की इजाज़त दिला दो तो सुबह की अजान का वक्त ना होने पाएगा कि कूफे में बैठे हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार पर और शाम में बैठे हुए यजीद के दरबार पर अगर हुसैन के नाम का परचम न लहरा दूं तो मुझे भी अब्बास न कहना। एक रवायत ये। अब दूसरी सुने कि हबीब व ज़ुहैर नहीं गए। अब जो जुमलों का लुत्फ उठा सकता है वो उठा ले, इसीलिए मैंने इस रवायत को मुख्तसर करके पढ़ दिया। हाँ, क्योंकि ये रवायत मुझे पढ़ना है, लुत्फ उठाइएगा। मुझे नहीं पता है कितना आप आमादा है कितना नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा बात पहुंचाने की। जब बात हुई कि मोहलत की बात करना है कुछ, तो आज मंजर अजब है। हमेशा ये होता था कि नबी आगे होते थे, अली पीछे। आज मंजर ये है कि करबला में अली आगे आगे चले, नबी पीछे पीछे। नहीं आमादा है, और वजाहत करना पड़ेगी। अब्बास आगे आगे चले, अली अकबर पीछे पीछे। एक एहसानी हैदर, दूसरा है शबीह रसूल। और कर रहा जनाबे अली अकबर और जनाबे अब्बास के लिए मिलता है कि जब ये दोनों साथ बाजार जाया करते थे, बाजार से गुजरते थे, लोग बाजार बंद कर देते थे, पूरी मार्केट बंद हो जाती थी और लोग जियारत करने में मशगूल हो जाते थे। दोनों को देखने लगते थे और आपस में कोहनियां मार के एक दूसरे से कहते थे, देखो वक्त कैसे पलट के आता है। कहा क्या मतलब है? कहा इधर देखो, ऐसा लगता है फिर से अली आ गए, फिर से नबी आ गए। ये मंजर होता था, या अली आ गए। सुनिएगा मेरे अजीज, बहुत जल्दी जल्दी, बस बात तमाम हो रही है। हाँ, फिर से नबी, फिर से अली। देखिए, इतना तो अंदाजा लगा लिया है मैंने इतना पढ़ के कि अगर मैं आहिस्ता पढ़ूंगा तो आप भी आहिस्ते ही सुनेंगे। हाँ, ये इतना तो अंदाजा हो ही गया है। ठीक है, जैसे भी सुने, मुझे सुनाना है, आपको सुनना है। खाना मिलेगा नहीं जब तक मैं उतरूंगा नहीं। हाँ, तो अगर आप जो है आहिस्ता ही आहिस्ता सुनेंगे तो मैं थकूंगा नहीं, पता नहीं फिर कब उतरूंगा। अगर बोल के सुनेंगे तो मेरा अंदाज बदलेगा, जल्दी थक जाऊंगा, जल्दी उतर जाऊंगा। क्या कीजिए, एक बंदे में पाबंद हूँ वरना दिखलाऊं मैं कर्रार का खैबर में उतरना। जिस सिमत से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। देखिए, ये वाकई बिल्कुल बात सही है कि आलम में इतनी हैबत है, आलम में इतनी हैबत है, आलम में वाकई आलम में हैबत है। इंसान हर कोई देख नहीं सकता है आलम की जानिब। हाँ, और आलम हमारी पहचान भी है, आलम हमारी पहचान है। आप अपने घर की छत पर आलम लगा दे, दूर से लोग कहेंगे शिया का घर है ना। आलम छत पे लगा दे, दूर से लोग कहेंगे शिया का घर, शिया का घर। अब अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब लिखते हैं कि हर शबे कद्र में, यानी साल में एक मरतबा, हर शबे कद्र में जिब्रील एक हरे रंग का अलम आसमान से लाते हैं और काबे की छत पर लगा देते हैं। हर शबे कद्र में
علامہ نجم الحسن قراروی لکھ رہے ہیں کہ ہر شب قدر میں جبریل ایک ہرے رنگ کا سبز رنگ کا علم لے کے آتے ہیں اور کعبے کی چھت پر آ کے نصب کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ اچھا یہ روایت ہے کہ علم لاتے ہیں لگا دیتے ہیں، یہ روایت نہیں ہے کہ جو پچھلے سال لگایا تھا وہ علم واپس لے جاتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا علم بھی لگا ہے اور پچھلے سال والا علم بھی نصب ہے وہیں پر۔ میں کہوں گا جبریل علم تو بہت ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سمجھا کہاں نہیں سمجھا، آوازی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں غور کر رہا بھائی، جبریل ہر شب قدر میں علم لے کے آ رہے ہیں، علم لگا رہے ہیں، علم لگا رہے ہیں، کعبے کی چھت پر علم لگا رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں جہاں علم ہو وہ حصہ شیعوں کا ہوتا ہے۔ تو علم ہر شب قدر میں چھت پہ لگاتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ تو سوچئے کتنے علم ہو گئے شب قدر، جوڑیے کتنی ہوئی آج تک۔ ہر بار علم لے کے آتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ لڑنا ہو تو علامہ نجم الحسن قراروی سے لڑیے گا جا کے، بتا دیا میں نے۔ ہاں میں ایڈریس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو میں حوالے دیتا جاؤں گا، کتابیں آپ جلاتے جائیے، پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ ہاں بھائی، یہ بھائی دیکھیے، میں ابتدا ہے ایمان کی ابتدا ہی کہوں گا، بہت زیادہ ایمان تو نہیں ہوگا، ابتدائی صحیح تو میں تو نہیں چھپا سکتا فضائل، میں نہیں چھپا سکتا فضائل آل محمد۔ یہ چھپانے کی چیز تھوڑی ہے، یہ سورج ہے جو دن روز طلوع ہوگا۔ فضائل ایک ایسے سورج کا نام ہے جو روز طلوع ہوں گے، روز طلوع، یہ سورج روز طلوع ہوگا۔ ہمت ہے تو گرد ڈال کے روشنی روک سکو تو روک لو۔ ارے کل کے بڑے بڑے تو فضائل روک نہ پائے، اور کرنا ہے۔ آج کون روکے گا فضائل آل محمد؟ ہاں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں عرض کیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو خدمت میں عرض کریں گے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ چلے آگے آگے علی، پیچھے پیچھے، آج منظر بدلا ہوا ہے نا، پیچھے پیچھے نبی، ثانی حیدر عباس آگے آگے، شبیہ رسول علی اکبر پیچھے آئے 9 لاکھ کے سامنے، 9 لاکھ کے سامنے۔ یہ مائک ہٹا دیجئے، میں یہاں سے بولوں شاید وہاں تک آواز پہنچنا مشکل ہو جائے۔ اب سوچئے 9 لاکھ، 9 لاکھ، پسرے ساتھ پورے لشکر کا سردار ہے جو بیچ لشکر میں بیٹھا۔ اب اگر بیچ چنا جائے تو کم سے کم ادھر 4.5 لاکھ ہے نا، بیچ لشکر میں۔ مائک ہٹائیے، وہاں تک آواز نہیں جائے گی۔ اب عباس غازی کے اختیار کو سنیے گا۔ رہوار پا علی کا شعر، 9 لاکھ کو دیکھا، اگر 4 دشمن آ جاتے ہیں انسان کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ علی کا شعر مطمئن بیٹھا ہوا ہے، رہوار پا 9 لاکھ کو دیکھا، 9 لاکھ کو دیکھا، آواز دی، کہاں ہے پسرے ساتھ؟
हवा ने अमानत में खयानत न करते हुए इस आवाज को पिसरे साथ के कानों तक पहुंचा दिया। कांपने लगा, लरजने लगा, थर्राने लगा। सब कौन है? अली का शेर किसे बुला रहा है? का सुना नहीं? नाम लेके पुकारा है। का हम तो न जाएंगे, का तुम न गए तो सब मारे जाएंगे। अच्छा तो जाना पड़ेगा। कहाँ जाना? तो मंजर है, मंजर सुनिएगा, जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। का तो ऐसा करो कि तलवारें निकाल लो। सिपाहियों से कहा तलवारें निकाल लो। अब उनको तो अपनी सैलरी भी लेना थी, तो जब अब सरदार कह रहा था तो मानना तो वही था, लेकिन सिपाही भी सोच रहे हैं कि आज बच के आ गए तो मुकद्दर है। तलवारें निकाल ली। का गुस्से में देखना तो फौरन तलवार चला देना। सिपाहियों से कह रहा है गुस्से में मुझे देखना तो फौरन तलवार चला देना। पैरों में जलजला, हाथों में कपकपाहट, होठों में लर्जा, जबान में थरथराहट, जिस्म काबू में नहीं। बात कर रहा है तलवार चलाने की। अब चल तो दिए, चल दिए। तब बादशाह चूंकि वो एक हाकिम बना हुआ है अभी, वो चला सिपाही साथ साथ। करा कुछ ऐसी बातें करो मेरा दिल बहल जाए। हाँ, मेरा दिल कुछ बहले। क्यों? ये इसलिए चूंकि ये है सरदार। अब इसे जाहिर वहां जाके करना है कि मैं डरा नहीं हूं, क्योंकि अगर सरदार ही डर जाएगा तो लश्कर तो पहले भागेगा, और भागने में तो पूरा मशहूर ही है। और कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसे साबित करना है कि मैं डरा नहीं। वो अलग बात है, जिस्म से जाहिर है, कपकपाहट बता रही, थरथराहट बता रही, लर्जा बता रहा है कि डर चुका है, मगर इसे जाहिर तो यही करना है कि मैं डरा नहीं हूं, क्योंकि सरदार है। अगर यही कह देगा कि मैं डर गया हूं तो लश्कर तो पहले ही डर जाएगा। तो इसे यहां आके ये साबित करना है कि मैं डरा नहीं हूं। तो और कीजिएगा, जुमले एक एक जहन में रखिएगा। अख्तियार बताने जा रहा आया निकल के, क्या बात है? तो वो कुछ मोहलत की बात करना है। कांप रहा है, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि इसे साबित करना है कि मैं डरा नहीं हूं। जिस्म से जाहिर है, मगर अब जबान से इसे साबित करना है कि मैं डरा नहीं हूं। तो आवाज देता है, मैं कोई मोहलत की बात नहीं करूंगा, मेरे पास 9 लाख है, मैं क्यों मोहलत की बात करूं? कोई मोहलत की बात नहीं करूंगा। तो मौला अब्बास आवाज देते हैं, सोच ले। सोच ले, मेरे आका ने मुझे आज किसी चीज से रोका नहीं है। हाँ, तो सोच ले। नहीं, वो मैंने सब सोच लिया है, हमारे पास 9 लाख है, 9 लाख है, हम क्यों मोहलत की बात करें? जब कई बार उसने ये गुरूराना जुमला कहा 9 लाख 9 लाख 9 लाख, तो एक मर्तबा जनाबे अली अकबर आवाज देते, चचा क्या इजाजत है मैं कुछ बोलूं? आवाज दी, हाँ बेटा बता दो इसे। एक मर्तबा आवाज दी, क्या बकता है? कहा मेरे पास 9 लाख है। कहा तेरे पास अगर 9 लाख है तो मेरे पास चचा अब्बास है। या अली अली अली, सुनते रहिएगा, मेरे पास चचा अब्बास है। तो एक मर्तबा जुमला सुनिएगा, अख्तियारे मौला अब्बास बताने जा रहा हूँ। आवाज दी, पिसरे साहब कहता है कि अगर आपके पास चचा है आपके, तो एक अकेले की बात आप कर रहे हैं, एक अकेले की बात कर रहे हैं। हमारे पास तो 9 लाख है, 9 लाख, और 9 लाख से एक अकेला कैसे लड़ेगा? तो मौला अली अकबर कहते हैं, अरे लड़ने की बात ही क्या है, मुकाबले की बात ही क्या है? मुकाबला तो हम पल्ला में होता है, मुकाबला तो बराबर वालों में होता है। आवाज दी, क्या मसला है, क्या बात है? आवाज दी, तुम सबको मारने के लिए मेरा चचा तो तलवार भी ना उठाएगा। कहा फिर हम 9 लाख को कैसे मार सकता है? कहा 9 लाख को मारने के लिए मेरा चचा तलवार नहीं उठाएगा, सिर्फ नमाज जनाजा की नियत करेगा। अल्लाह अकबर।
نماز جنازہ کی نیت، ہاں حیرت نہ کیجیے گا، تعجب میں نہ پڑیے گا کہ نماز جنازہ کی نیت کریں گے اور زندہ مردہ کیسے ہو جائیں گے؟ ارے اسی کا بیٹا تو ہے جو کہہ رہا ہے پڑھا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی کا لال تو ہے جو کہہ رہا ہے پڑھا دوں۔ اختیار مولا عباس۔ پھر جناب علی اکبر کہتا ہے لیکن تم لوگوں کو تلوار سے ہی مارا جائے گا، نیزہ خنجر سے ہی مارا جائے گا، نماز سے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نماز مسلمانوں کی ہوتی ہے، کافروں کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اور کر رہے ہیں، یہ ہے اختیار عباس غازی، یہ ہے باب الحوائج کا اختیار، یہ ہے باب المراد کا اختیار۔ اور مولا عباس کا ایک لقب ہے ظاہر الولایہ۔ ظاہر الولایہ کیا مطلب ہے؟ ظہر عربی میں کہتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی کو، کمر کی یہ ہڈی ہے نا، اس کو عربی میں ظاہر کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے 1000 بار سنا ہوگا کہ امام حسین نے مولا عباس کے مرنے پہ کیا کہا تھا؟ الان انکسرت ظہر، میری کمر ٹوٹ گئی، یہی کہا تھا نا حسین۔ ظاہر الولایہ کا مطلب ہوا کہ ولایت کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے عباس۔ کر رہے ہیں آپ؟ مولا عباس یہ لقب ہی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس اختیار کیا کیا ہے، ایسے اختیار ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص اپنے بیمار بیٹے کو پوری دنیا میں دکھا چکا، نہیں اچھا ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، چند دن بچے ہیں، خدمت کر لو جو کرنا۔ اس نے لے جا کے باب الحوائج کی بارگاہ میں ڈال دیا، زری کے پاس۔ ملک الموت اجازت لیتا ہے، پروردگار جو عمر لکھی تھی اس کی وہ تمام ہو گئی، اجازت دے میں روح قبض کر کے آؤں۔ آیا، ایک مرتبہ جب آیا تو لکھتے ہیں کہ مولا عباس نے کہا جاؤ اور جا کے خدا سے کہہ دو کہ یا اسے شفا دے دے یا پھر میرا باب الحوائج کا لقب چھین لے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہی ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے خالی نہیں جائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ فرشتہ آیا تو اللہ کہتا ہے اسے شفا دی جاتی ہے، آپ کا یہ لقب نہیں چھینے، شفا دی جاتی۔ یہ ہے باب الحوائج، یہ ہے باب المراد، جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو طلب کریں گے۔ میرے عزیزو، ختم ہو گئی بات، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، بی بی جزا دیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں کہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بات سے بات نکلتی گئی، آخری مجلس تھی تو میں نے اتنا آپ کا وقت لے لیا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ محمد بولے، محمد صلوات۔ اس وقت کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں سوائے اس کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی آپ کو اس کا اجر دے گی، حسین کی ماں اس کا اجر دے گی۔ میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ میں جہاں بھی 3 یا 4 یا 5 یا 10 ایسے پڑھتا ہوں تو آخری مجلس میں کوشش کرتا ہوں آقا حسین کی مصیبت بیان کروں، اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کیوں یہ میری سوچ ہے۔ یہ سوچ اس لیے ہے میری کیونکہ 10 دن ہوں یا 15 دن ہوں یا 5 دن ہوں یا 4 دن ہوں یا 3 دن ہوں، ان دنوں میں ہم سب کی شہادت تو نہیں بیان کر سکتے، سب کے مسائل تو نہیں بیان کر سکتے، تو ہم آخری دن اسی لیے آقا حسین کی مصیبتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جو سب پہ گزری وہ ایک اکیلے حسین پہ گزری، کہ سب پہ مصائب ڈھائے گئے وہ ایک اکیلے حسین پہ۔ اسی لیے ہم آخری مجلس میں آقا حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ زہرا کی گود کا پالا، عباس غازی ہر وقت حسین کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ایک وقت آیا
کہ حسین آواز دے رہے ہیں عباس کہاں ہو؟ اللہ عباس. ایک روایت میں نے اپنے استاد سے سنی ہے. روایت یہ ہے کہ سب سے پہلا روضہ جو بنا ہے وہ روضہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے بنایا. سب سے پہلا روضہ جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم، جو آپ مختار نامہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ جناب ابراہیم ساتھ ہیں. مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بڑے شجاع تھے، بہادر تھے، اور قبیلے کے اعتبار سے جناب مختار سے بھی زیادہ قبیلہ ان کا قوی اور شجاع اور بہادر تھا. جناب ابراہیم کا مالک اشتر کا تو نام سبھی جانتے، مولا علی کے صحابی تھے، خاص چاہنے والوں میں سے تھے. تو جناب مالک اشتر جب کربلا پہنچے ہیں تو مولا عباس اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر یہ دونوں دوست تھے. جیسے جناب حبیب بن مظاہر اور آقا حسین تھے، ویسے ہی جناب ابراہیم بن مالک اشتر اور مولا عباس دوست تھے. تو جناب ابراہیم جب کربلا پہنچے ہیں تو دیکھا قبریں بنی ہوئی ہیں، تڑپ کے روئے، تڑپ کے گریہ کیا. دیکھا قبریں بنی ہیں مگر سایہ نہیں ہے. تو انہوں نے 4 بانس لیے، 4 بانس اور چاروں کونے پہ گاڑے، اور اس کے بعد پتوں سے اس کو باندھ کے چھت ڈالی، اور ڈالنے کے بعد ایک روزے کی شکل دی اسے. یہ پہلا روزہ ہے جو زہرا کے غریب لال کی قبر پہ سایہ بنا. میں کہوں گا ابراہیم، آپ سے حسین کی بے سایہ قبر نہیں دیکھی گئی. ابراہیم کاش جنت البقیع آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، سننا آزادار. تو ابراہیم نے روزہ بنایا. حسین پر خوب روئے، قبر پر روئے. لیکن روایت کہتی ہے جب جناب عباس کی قبر پر ابراہیم آئے تو روئے نہیں، بلکہ قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی سے یوں پکڑا اور کہا عباس تم تو میرے دوست ہو، ہمارے علاوہ تم سے ایسے کوئی بات نہیں کر سکتا. عباس یہ بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو مارا کس نے؟ قبر عباس تھرانے لگی. آواز آئی ابراہیم کاش کربلا میں آ جاتے اس وقت. اللہ اکبر، اجر کو ملا زہرا. ہاں لیجئے عزیزو، بس مختصر کر کے عرض کروں کہ وہ وقت آیا کہ جب کوئی نہ رہا، حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں. آواز دی بہن زینب تم پر میرا آخری سلام، بہن کلثوم تم پر میرا آخری سلام، لیلا اور رقیہ تم پر میرا آخری سلام. ایک ایک کو سلام کیا. خیمے سے باہر آئے، سید سجاد کے خیمے میں آئے، سید سجاد سے رخصت ہوئے. تاریخ کہتی ہے رہوار کے قریب آئے. اب حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں. زینب سمجھ گئی، آگے بڑھی. آواز دی بھیا اب وہ علی اکبر نہ رہے، اب وہ عباس نہ رہے جو آپ کو سوار کرتے تھے. یہ زینب 10 محرم کو آپ کو سوار کر رہی ہے. کل 11 محرم کو زینب کا خدا محافظ ہے. بہت روئیں گے اگر تصور کریں گے عزیزوں. بس ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی. لیجئے ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، سوار کرنا شروع کیا. 2 لوگ حسین کو سوار کرتے تھے، ایک مولا علی اکبر اور ایک مولا عباس. 2 لوگ حسین کو سوار کرتے تھے، مولا علی اکبر اور مولا عباس. امام حسین کا بازو علی اکبر پکڑتے تھے، امام حسین کا بازو علی اکبر پکڑتے تھے، اور رکابے جس میں پیر ڈالے جاتے ہیں ان رکابوں کو مولا عباس پکڑتے تھے. اب جملہ برداشت کر پانا تو برداشت کر لینا. رکابوں کو مولا عباس پکڑتے تھے، بازو کو علی اکبر پکڑتے تھے. اب زینب آگے بڑھی، زینب نے حسین کے بازو کو پکڑ لیا. وہ کام زینب نے کیا جو علی اکبر کرتے تھے. علی اکبر بازو پکڑتے تھے، زینب نے بازو تھام لیا. وہ کام تو زینب نے کیا جو علی اکبر کرتے تھے. اب رکابوں کو کون تھامے؟ لکھا ہوا ایک بی بی آگے بڑھی، اس نے رکابوں کو تھام لیا. حسین آواز دیتے اے بی بی میری آنکھوں کا نور علی اکبر لے گئے ہیں. اے بی بی میں پہچان نہیں پایا، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ آواز دی آقا نہ پہچانا؟ ارے میں عباس کی بیوہ، عباس کی زوجہ لبابہ، میرا شوہر آپ کو سوار کرتا تھا، میں آپ کو سوار کرنے آئی ہوں. اور
हाजिरकुम इला ज़हरा। लीजिए, हुसैन सवार हुए, हुसैन सवार हुए। तारीख कहती है कि चाहा 2 कदम रहवार को आगे बढ़ाएं, लेकिन रहवार आगे नहीं बढ़ा, इशारा करता है। हुसैन ने देखा तो 4 बरस की बच्ची घोड़े के सींगों से लिपटी बयान कर रही है। हुसैन जमीन पर आए, सकीना को समझाया, सारी तफसील छोड़ रहा हूँ, सकीना को समझाया। तारीख कहती है बस एक मरतबा हुसैन दोबारा सवार हुए और चाहते हैं कि रहवार को फिर आगे बढ़ाए। अभी 2 कदम रहवार आगे बढ़ा था। सकीना चहीती बेटी है ना, सीने पर सोने वाली बेटी है ना, सुनना आजादारो, सीने पर सोने वाली बेटी है ना। एक मरतबा जैसे ही हुसैन ने 2 कदम रहवार बढ़ाया था, सकीना दौड़ के रहवार के आगे आ गई और बाबा के चेहरे को देख के कहती है, बाबा बाबा बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। फरमाया कि बस जिद न करो सदके में तुम पर, अरे शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। ए सकीना आज से कानून बदल गया है, तुम अम्मा के साथ सोना, असगर मेरे साथ सोएगा। लीजिए रुखसत हुए हुसैन, आए मैदान जिहाद में, हमलों पर हमले कर रहे हैं। आवाज देते तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास के बाजू काट डाले, तुमने मेरे अली असगर को मारा। ये लो मेरे अब्बास की तरफ से हमला, ये लो मेरे अली अकबर की तरफ से हमला, ये लो मेरे कासिम की तरफ से हमला। अल अमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हुई। हुसैन लड़ते लड़ते फुरात के किनारे आए। अब्बास के भाई की जंग न देखोगे, लड़ते लड़ते मकाम अली अकबर पे आए। अली अकबर के बाबा की जंग न देखोगे। हुसैन एक एक को आवाज दे रहे हैं। लड़ते लड़ते फिर हुसैन मैदान में आए। एक निदा आई, हुसैन शजात के जौहर दिखा चुके हो, सब्र के जौहर दिखाओ। कलेजा फट जाए तो कम है सुनना आजादारो, सब्र के जौहर दिखाओ। फौजें काफी दूर जा चुकी थी, हुसैन ने तलवार रोकी, तलवार न्याम में रखी। फौजें दूर जा चुकी थी ना, हुसैन ने जो हमले किए थे फौजें भाग चुकी थी। अब तलवार रोकने का हुक्म आ चुका है। हुसैन ने तलवार न्याम में रखी, अब भागी हुई फौजें सिमट रही हैं। हुसैन रहवार पर सर झुकाए हुए हैं। अब हुसैन ने जो सर उठाया कि लाओ देखे फौजें कहां तक आई हैं। तारीख कहती जैसे ही एक मर्तबा सर उठाया, एक जालिम ने पत्थर उठाया। अब जो पत्थर मारा हुसैन की पेशानी पर पत्थर, आवाज दी अब्बास, अल्लाहु अकबर। हाज़ादारो, तारीख कहती है बस हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया। कोई नेज़े मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई खंजर मारता है, कोई पत्थर मारता है। जिसके पास करबला में कुछ नहीं है वो करबला की गर्म रेत उठाता है और हुसैन के जख्मों पर डालता है। सुनना आजादारो, आपने सुना होगा कि हुसैन कभी दाएं जाते थे रहवार पर, कभी बाएं जाते थे। हुसैन कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। ये सुना है ना आपने, हुसैन रहवार पर कभी दाएं कभी बाएं झूम रहे थे हुसैन। लेकिन सबब जानते हैं क्या है? नेज़ों की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, पर 2-3 जुमले मजलिस तमाम है, शायद मैं समझा सकूं। एक लम्हे के लिए देखिएगा। नेज़ों की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में। बस वो नेज़े की किस्म मैं बताने जा रहा हूं जिसके सबब हुसैन कभी दाएं कभी बाएं। अगर मैं समझा सका तो रोते हुए घरों तक जाएंगे। नेज़े की बहुत सारी किस्में हैं, बस एक किस्म सुनाता हूं। नेज़े में आगे एक नुकीला हिस्सा होता है, बहुत तवील, बहुत ही तवील एक राड लगा होता है, उसमें आगे लोहे का होता है, उसमें एक नुकीला हिस्सा होता है। नुकीला हिस्सा ये सादा नेज़ा कहलाता है। ये सादा नेज़ा होता है, मारा जाता है, निकाल लिया जाता है। दूसरी किस्म बताऊं नेज़े की, बहुत सारी ऐसे ही किस्में हैं, बस वो नेज़ा सुन लीजिए जिसके सबब हुसैन कभी दाएं कभी बाएं। सुनना आजादारो, नेज़े में आगे एक नुकीला हिस्सा होता है और ये राड लगा हुआ है जिसको पकड़ के मारा जाता है। इस नुकीले हिस्से पर राड की तरह मुड़े हुए ऐसे कांटे बने होते हैं। नेज़े की एक किस्म ये बता रहा हूँ, ऐसे मुड़े हुए राड की तरह मुड़े हुए कांटे, आगे ये नुकीला हिस्सा, पीछे ये मुड़े हुए कांटे बने होते हैं, ताकि जब नेज़ा मारा जाए तो वो नुकीला हिस्सा जिस्म में जगह बनाए। जब नेज़ा खींचा जाए तो हड्डियां हो के पसलियां उन कांटों में फंसती हैं। सुनना आजादारो, अब आपने सुना है हुसैन कभी दाएं जाते थे कभी बाएं। सबब क्या है? सबब ये है कि एक जालिम ने हुसैन के दाईं तरफ नेज़ा मारा, उसी वक्त एक जालिम ने हुसैन के बाएं तरफ नेज़ा मारा। अंदर जाके नेज़ा नेज़े में फंस गया। जालिम दाहिनी तरफ कहता था, हुसैन दाएं, जालिम इधर कहता था, हुसैन बाएं। अल्लाहु अकबर। सुनना आजादारो,
कहती है जब हुसैन से संभला ना गया, हुसैन से संभला ना गया तो एक मरतबा आवाज दी, ए अस्पे बावफात मुझे कहीं ऐसे नशेब में उतार दे जहां ज़िबा होते हुए मेरी बहन ज़ैनब ना देख सके, मेरी बहन ना देख सके। रहवार नशेब में लेके आया, हुसैन ने कत्लगाह को पहचाना, सब छोड़ रहा हूँ, हुसैन ने कत्लगाह को पहचाना। जीन से हुसैन जमीन की तरफ आए, जमीन पर नहीं आए, जमीन की तरफ आए। हुसैन तो तीरों पर है ना, हुसैन तो तीरों पर है ना। अब मैं वो जुमला नहीं कहूंगा, मेरी जबान जल जाएगी, जो जुमला किताब में लिखा हुआ है। मैं इशारा करूंगा शायद आप समझ जाएं। सुनना आज़ादारो, हुसैन तीरों पर है, हुसैन तीरों पर है। शिमरे मलून खंजर लेके चला, खंजर लेके चला और कुरान पर अपने जानवे नजिस रखा, इधर के तीर उधर। मैंने कहा ना मैं वो जुमला नहीं कह सकता हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो दहाड़े मार कर रोए ऐसे जैसे ज़ईफ माँ अपने जवान के लाशे पर होती है। अल्लाह अकबर। हाँ बस खत्म हो गई मजलिस। इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर। शिमरकुंद खंजर चलाता है। खंजर कैसे चलता है जानते हैं? खंजर कैसे चलाया जाता है? कुर्बानी के वक्त जानवर ज़िबा होते देखे होंगे आपने कि कैसे ज़िबा होते हैं। ये खंजर चलाने का तरीका है। खंजर चलाने का ये तरीका है कि गले पर छुरी रखी जाती है, खंजर रखा जाता है और खंजर को कभी आगे और कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, खंजर को आगे और पीछे किया जाता है ना। ये खंजर चलाने का तरीका है। खत्म हो गई मजलिस। खंजर चलाने का ये तरीका है, गले पर रख के खंजर को कभी आगे और कभी पीछे किया जाता है। ऐसे खंजर चलाया जाता है। कभी लकड़हारे को लकड़ियां कुल्हाड़ी से काटते देखा है? कुल्हाड़ी को लकड़ी पर रख के रेता नहीं जाता है, आगे और पीछे नहीं, मारा जाता है, मारा जाता है। अब जुमला कहूँ आज़ादारों, कलेजा संभाल लेना। अरे हुसैन का गला खंजर से जरूर काटा गया, मगर मलून खंजर खंजर की तरह नहीं चला रहा था, हुसैन के गले पर मार रहा था। पहली मर्तबा खंजर मारा, आवाज इमाम मोहम्मद। दूसरी बार खंजर मारा, आलिया। तीसरी बार खंजर, आवाज भैया। उसके बाद शिमरे मलून हुसैन के गले पर खंजर मारता था। हुसैन आवाज देते थे, भैया अब्बास, मेरे शेर अब्बास, मेरे दिलेर अब्बास, अब्बास। वास्तव में मोहम्मद का हमारी शिवाला को कबूल फरमाए। हमारे गुनाह कबीर और गुनाह सगीरा को माफ़ फरमाए। बे औलाद ने औलाद अता फरमाए। बेरोज़